हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सो एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट एज ऑलवेज. सो आई वेलकम you all to our very own ARU underway. Now the meaning of ARU is basically all about rigorous understanding, and it is nothing but a voyage to your maritime industry. So myself, Cadet Vachri Dwivedi, and I am basically a third year BTech ME student. So as this is our first video, what this channel brings to you all is focused on IMU syllabus, which is mainly for the 2025 बैच. तो जो अभी करेंटली फर्स्ट ईयर में है या जो अभी नया बैच आएगा जो अभी फर्स्ट ईयर में होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो IMU का सिलेबस होता है वो 4 इयर्स तक वैलिड होता है, सेम सिलेबस, which means कि 2025 batch is the first batch to go for this new syllabus, right? Yeah. And after this 26, 27, 28 and 29 will be the other batches जो कि ये सेम सिलेबस को पढ़ेंगे. तो हम इस सिलेबस को सबसे पहले टारगेट करेंगे. Then in future, if we get the love and support from you guys, we will be going for detailed maritime subject जो कि होगा आपका for class 4, class 2, class 1 related to navigation. Yes, we'll be having other channels also, which is RUNS, and we'll be also having one more channel which is RU underway, and it will be basically related to all the information which a person requires before joining this profession, engineering and seamanship, and real sea life experiences, which means that we will be also covering the sea life experiences, like whenever I'll be joining a vessel or other people, those who are there already on the vessel, when they will share their experience, so you will get more opportunity, or you will get more glimpse of what is it at sea. And we'll also be helping aspiring mariners bring strong foundation. So this is basically what will be done by RU underway channel, which is the main channel, right? So yeah, this is it, and you can see over here कि हमारा जो मोटो है, that is your journey to maritime excellence begins here, right? So now yes, semester 2, which is currently for the current first years, we'll be taking basic thermodynamics, right? So under RUME, the subject basic thermodynamics is officially underway. Yeah. So moving ahead, by not wasting your time much, engineering thermodynamics is what we are going to start. And again, आपको पता ही है, Vachri Dwivedi, my name. So I'll be taking this, and I'll be basically dealing with all the subjects of marine engineering, which the upcoming batches of IMU will study, and later on we'll be also dealing with class 4 and class 2. So yes, the first unit which we are going to begin with today is basic terms related to thermodynamics. I'll again repeat दो चीजें जो मेरे को बतानी है आप लोग को. Number 1 is कि जब भी मैं करा रहा हूं, I'll be basically using the mode of language as English, which is कि मैं हिंदी में भी आपको बताऊंगा चीजों को, and then I'll also repeat it in English. Whereas the second important thing is जहां जहां पे मैंने MI star लिखना है, wherever I'll write MI star, this is to be considered as most important. Most important. इसने इस चीज को आपको एग्जाम में नहीं भूलना. अगर आप ये भूल जाते हो, then you can create a big blunder in the exams, right? And I'll be mainly dealing with the IMU examination, which is जो आप 70 marks का देते हो, right? Initially we'll be dealing with this, जिसमें से 35 is pass marks, right? अगर आप 70 में से 35 ला रहे हैं, then you are passing the exam or the subject. और अगर आप 35 से कम ला रहे हैं, then basically you are getting backlog in this particular subject. So yeah, without wasting any time,
we'll be starting with basic terms related to thermodynamics. Okay, so चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यार थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, एकदम आराम से समझेंगे. एंड आई बेट अगर आप मेरे वीडियोस स्टार्टिंग से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा. ठीक है, ओके. सो thermodynamics is the branch of physics that studies the relationship between heat, energy and work. It explains how energy moves and changes in a system, especially when it comes to temperature, pressure and volume. मुझे पता है 110% आपको कुछ समझ में नहीं आया. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं. बेसिकली किसी भी टर्म को समझने के लिए ना हम उसको, उस वर्ड को दो हिस्सों में तोड़ेंगे. तो मैं लिख रहा हूं थर्मो एंड डायनेमिक्स. अगर मुझे इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझ में आ गया ना, तो मैं थर्मोडायनेमिक्स को आराम से समझ लूंगा. ठीक है, तो व्हाट इज मेंट बाय थर्मो. अच्छा एक सेकेंड, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, आई थिंक सो. या eraser and okay, yeah, good to go. So यहां पे मैं लिख रहा हूं थर्मो एंड दिस इज योर डायनेमिक्स. थर्मो का बेसिकली मतलब होता है हीट. क्या होता है? हीट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मो? थर्मो मीन्स हीट. और डायनेमिक्स क्या होता है? Dynamics is basically related to motion plus cause of motion. कहने का मतलब बहुत सिंपल भाषा में यही है कि थर्मो का मतलब होता है हीट. हीट इज व्हाट? हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म होता है. एंड डायनेमिक्स इज मोशन प्लस कॉज ऑफ मोशन. हमें पता है मैकेनिक्स के 3 हिस्से होते हैं. एक होता है स्टैटिक्स, जिसमें हम लोग बॉडी को स्टेशनरी मान के चलते हैं. दूसरा होता है काइनामेटिक्स, जिसमें बॉडी सिर्फ मोशन में होता है. और तीसरा होता है डायनेमिक्स, जहां पे बॉडी का मोशन और उसका कॉज दोनों जाना जाता है. तो यही है हमारा मेन मतलब थर्मोडायनेमिक्स का. क्या है मेन मतलब? हीट इन मोशन. ठीक है, ये अगर आप समझ गए ना, देन यू कैन इजीली नेल द सब्जेक्ट. आई एम बेटिंग ऑन दैट, क्योंकि बहुतों को यही चीज नहीं लगती है. अब देखो, बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो मेरे पास एक सर्किट है. यहाँ पे ये रेजिस्टर मैंने एक लगा दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, दिस इज रेजिस्टेंस R. करंट मेरा ऐसे चलेगा. तो यहाँ पे क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं जी? करंट इलेक्ट्रिसिटी. क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी. समझ में आए? तो यहां पे भी आप देखो एक चीज कि भाई इलेक्ट्रॉन का एक मोशन हो रहा है. क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का एक मोशन हो रहा है. और उसी मोशन में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. And what is electricity? What is electricity? It is nothing but a form of energy. Electricity क्या है? ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है. A form of energy, है ना? तो बस वैसे ही heat is also a form of energy. और इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को जब हम लोग मोशन में लाते हैं, और मोशन में लाने के साथ साथ हम उसके कॉज को भी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं जी thermodynamics. Whenever a heat is brought in motion, and when it is brought in motion, the parameters which we study as well as the cause of bringing that heat into motion,
both of these things when we take into consideration, we deal with a branch of science called as thermodynamics. बस चलिए अब मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन क्या है। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। जी हाँ, ठीक है, साइंस का ब्रांच है, फिजिक्स का ब्रांच है, जो कि स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, एनर्जी एंड वर्क। अब देखो, किसी भी बॉडी को अगर मोशन में डालते हैं तो हम लोग उसकी एनर्जी और वर्क के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, चाहे वो मैकेनिकल बॉडी हो, या चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, या चाहे वो स्प्रिंग के बारे में हो, कुछ भी हो, उसमें एनर्जी और वर्क आता ही है, चाहे इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो या मैकेनिकल सिस्टम हो। वैसे ही जो हीट का सिस्टम होता है, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, उसमें हीट के साथ साथ उसके एनर्जी और वर्क भी आती है। इट एक्सप्लेन्स हाउ एनर्जी मूव्स। देखो, एनर्जी मूव्स यानी कि हीट एनर्जी, जो मैंने बोला थर्मो, तो यही है आपका थर्मो और डायनामिक्स, थर्मो एंड डायनामिक्स। एनर्जी मूव्स, विच एनर्जी? हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। एंड चेंजेस इन अ सिस्टम, मूव करेगी तो चेंज होगी, बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये तीन क्या है? बेसिकली ये तीन ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहा है? ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी ये क्या है? हमारे कॉज है। तो देखो, इन शॉर्ट में बताता हूं, थर्मोडायनेमिक्स में हीट इन मोशन हो रहा है, एनर्जी आपकी मूव हो रही है और चेंज हो रही है सिस्टम में, और उसको चेंज कराने के लिए उसको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। बस बेस्ट एग्जांपल आप जैसे कि यहां पे देख सकते हैं, ये एक हॉट मीडियम है, इसका टेम्परेचर है कुछ तो TH, एंड दिस इज अ कोल्ड मीडियम, इसका टेम्परेचर है कुछ तो TC। तो आप देख सकते हैं यहां पे हीट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम TH टू TC, बिकॉज वी नो कंडक्शन यही बोलता है कि भाई हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बहुत सिंपल सी बात है, हीट भी क्या एनर्जी है ना, तो जहां पे ज्यादा होगी और जहां पे कम होगी तो एनर्जी कैसे जाएगा? ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे। हाउ विल द एनर्जी गो? इट विल गो फ्रॉम द रिजर्वॉयर विच हैज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द रिजर्वॉयर वेयर देयर इज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब चाहे वो हीट एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, बट बेसिकली जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग हीट एनर्जी इनटू कंसिडरेशन, विच मींस कि हम लोग यहां पे टेम्परेचर इंफ्लुएंस करेगा। तो देखो कॉज क्या है इधर, यहां पे कॉज क्या है? कॉज एंड इफेक्ट, बस वही देखना है थर्मोडायनेमिक्स में। कॉज क्या है यहां पे? टेम्परेचर, यहां पे लिखा है ना, देखो टेम्परेचर, और उसके वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है? हीट का फ्लो। तो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड, हमको पता है ये काफी सुंदर एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं जी वाटर साइकिल, कि भाई सी वाटर होता है, वो सूरज के रेडिएशन की वजह से इवेपोरेट होता है और फिर प्रेसिपिटेट होके वापस से नीचे आ जाता है। तो यहां से गया इवेपोरेशन, यहां पे बन गया कुछ तो क्लाउड, ठीक है, यहाँ पे दिखाया नहीं है, मैं बना देता हूं, क्लाउड, और क्लाउड से वापस प्रेसिपिटेट होके नीचे चला गया। तो ये है वाटर साइकिल। अब यहां पे आप देखो एनर्जी कितने फॉर्म में चेंज हो रही है हीट ही एनर्जी। सबसे पहले तो हीट एनर्जी आई तो पानी को इसने किसने कन्वर्ट कर दिया? वेपर फेज में। ये कौन सा फेज है भाई? ये कौन सा फेज है? दिस इज नथिंग बट वेपर फेज, है ना। तो ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया, और फिर वेपर फेज से ये किस में कन्वर्ट हो गया जी? लिक्विड फेज। तो आप देख रहे हो एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रही है सिस्टम के अंदर अंदर। तो दिस इज योर थर्मोडायनेमिक्स। आई विल रिपीट इट वन मोर टाइम। थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करता है विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी इन मोशन, यानी हीट इन मोशन और हीट एनर्जी इन मोशन, विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ही कॉज कर रहा है उस एनर्जी को मूव होने के लिए। सो दिस इज योर बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, मैं जैसे जैसे आपको समझाते जा रहा हूं
आप प्लीज नोट करते जाए, बिकॉज वॉट एवर आई एम राइटिंग एंड वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज इंपॉर्टेंट. तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करिए एंड यू कैन नोट डाउन एवरीथिंग विच आई हैव रिटन. चलिए, अब आपने ध्यान दिया होगा थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन में मैं बड़ा सिस्टम सिस्टम वर्ड यूज कर रहा था, है ना. तो ये सिस्टम क्या होता है? तो सिस्टम इज बेसिकली डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन. ठीक है, सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? सिस्टम को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि भाई ये एक क्वांटिटी है ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस बीइंग एनालाइज्ड. बड़ा सिंपल सा मतलब है. सिस्टम का मतलब हो गया कि यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सिस्टम का मतलब हो गया एनीथिंग, बहुत सिंपल मीनिंग. ये भी आप अगर लिखोगे अपने एग्जाम में चलेगा. विच इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, कंसीडरेशन फॉर स्टडी पर्पस. सिस्टम का मतलब यह होता है कि किसी भी रीजन को अगर हम लोग अपने स्टडी पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम. बेस्ट एग्जांपल इसकी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप ये वीडियो YouTube के थ्रू देख रहे हैं, तो मेरा आपको पढ़ाना YouTube के थ्रू और आपका YouTube से मेरा वीडियो देख के पढ़ना इज अ सिस्टम, बिकॉज यहां पे एनालिसिस हो रही है. इसके अलावा जो कुछ भी आजू बाजू चल रहा है, मम्मी खाना बना रही है, हॉस्टल में लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, मेस में खाने का टाइम हो रहा है, मस्टर का टाइम हो रहा है, वट एवर रीजन इट मे बी, वो सब कुछ आ जाता है सराउंडिंग में. तो एनीथिंग विच इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, या इट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग आउटसाइड दैट सिस्टम. और बहुत सिंपल सी बात है यार कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ तो होना चाहिए ना, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए. तो ये जो मीडियम है ना, ये जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करता है उसको बोलते हैं बाउंड्री. तो द बाउंड्री इज द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन. फिर से, एनीथिंग विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर स्टडी पर्पस इज कॉल्ड एज सिस्टम. Whatever which is there except system is called as surrounding, and an imaginary line or a border or a boundary between system and surrounding is called as boundary. Clear? चलिए, तो अब हम आगे देखते हैं कि भाई प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम क्या होता है. अब हम आ चुके हैं उस रीजन में जिसको हमने स्टडी पर्पस के लिए कंसीडर किया है, सिस्टम. तो अब देखो प्रॉपर्टी क्या होती है. अब भाई उसको अगर स्टडी पर्पस के लिए हमने कंसीडर किया है तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना उसको डिफाइन करने के लिए. तो वो डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बेसिकली प्रॉपर्टी. तो ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिस्टम आर नोन एज प्रॉपर्टी. जो भी चीज हम मेजर कर रहे हैं या हम यूज कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर, उसको एनालाइज करने के लिए उसको बोलते हैं जी प्रॉपर्टी. जैसे कि वॉल्यूम, टेम्परेचर, लेंथ, एनर्जी, एंथैल्पी. देखते हैं आगे. 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी. चलिए एक एक करके देखते हैं. इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑन मास आर कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मतलब कि ये किस क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है, तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग. सबसे पहले आता है हमारे पास प्रेशर. अच्छा, अब देखो प्रेशर क्या होता है हमारे पास. प्रेशर इज व्हाट? What is pressure? Pressure is nothing but force upon area.
ठीक है। तो प्रेशर जो होता है हमारा, ये मास पे डिपेंड नहीं करता, ये मास पे डिपेंड नहीं करता। तो वे सारी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करती उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है आपको कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम के अंदर वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि मास क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। मास क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मैटर इन इट इज कॉल्ड एज मास। ऐसे ही एक और एक क्वांटिटी होती है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, टेम्परेचर। टेम्परेचर मास पे डिपेंड करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेगा भाई? कोई 100 केजी का आदमी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर अगर मान लो 30 क्या बोलते हैं, 30 भी नहीं, मान लो 109 फ़ारेनहाइट है। कितना है? 109 फ़ारेनहाइट। और अगर उसका वजन है 30 केजी फॉर एग्जाम्पल, 30 नहीं है, 30 बहुत बहुत वो हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर वो मैन नहीं है, बच्चा है। चलिए कोई बात नहीं, 65 ले लेते हैं। चलो 65 केजी का एक आदमी है जिसका टेम्परेचर है 109 फ़ारेनहाइट। मान लो इसको बुखार हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया 102 फ़ारेनहाइट। बट क्या मास चेंज हुआ? डिड द मास चेंज? द आंसर इज नो। सिर्फ बॉडी टेम्परेचर हमारी इंक्रीज हो गई 10 क्या बोलते हैं 100 डिग्रीज या सॉरी 100 फ़ारेनहाइट से 102 फ़ारेनहाइट हो गया। ठीक है, करेक्ट है। चलिए, तो टेम्परेचर भी एक क्वांटिटी हो गई। इसके अलावा हमारे पास एक और एक क्वांटिटी होती है जो होती है डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसे होता है ये हमें समझना पड़ेगा। सो वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी। तो डेंसिटी को मैं लिखता हूं जी रो से। डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब अगर डेंसिटी आप सी वाटर का, किसका? सी वाटर का डेंसिटी आप अगर मानते हैं कितना? 1.025 टन्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं मास मान लेता हूं 10 केजी, ये देखो ये इक्विवेलेंट है हमारे पास 1025 केजी पर मीटर क्यूब के। क्यों? बिकॉज 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 केजी। हाँ या ना? सिंपल। तो यहां से अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो 1.025 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन वी, तो v इज इक्वल्स टू समथिंग मीटर क्यूब आएगा। तो एक चीज आप देखो, कोई भी कंडीशन हो, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जिसकी वजह से डेंसिटी भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो डेंसिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, ठीक है, जो कि होता है विस्कोसिटी का, कि भाई विस्कोसिटी भी जो है आपकी वो डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप सो आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझने के लिए ना थोड़ा सा ही दिमाग चाहिए। क्यों? बिकॉज इट्स वेरी इजी, इट इज नथिंग बट जस्ट द वाइसा वर्सा ऑफ योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम क्या देख रहे हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। तो यार एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑन मास, राइट।
तो इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बड़ा सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंड योर इंटरनल एनर्जी। सबके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉल्यूम के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं, बाकी ये तीनों क्वांटिटी जो है, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी, हम तीनों पढ़ने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। वॉल्यूम क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज बीइंग टेकन बाय अ मैटर। मैटर तीन तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। कोई भी मैटर ने कितना स्पेस अपने पास ले रखा है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर कोई सॉलिड मैटर हुआ, उसने कुछ वॉल्यूम लिया हुआ है, लिक्विड मैटर हुआ या एयर हुआ, उसने भी कुछ वॉल्यूम लिया हुआ है। तो ये सब क्या है? एयर का भी कुछ मास होता है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट का भी कुछ मास होगा, लिक्विड का भी मास होगा। तो मास की वजह से ही तो वॉल्यूम डिपेंडेंट हुआ। तो वी कैन से वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी का भी हम आगे चल के इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है। एंड नाउ वी विल बी गोइंग ऑन टू अवर थर्ड प्रॉपर्टी विच इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, which will be your specific property. ओके तो चलिए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देखते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है? एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, ठीक है। एनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपने जो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल देखे, सबको मास से डिवाइड कर दो। जैसे ही मास से डिवाइड कर दोगे वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, एक्सेट्रा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये हमारे तीन प्रॉपर्टीज के बारे में बात थी। सबसे पहला था इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जहां पे हमने डेंसिटी के बारे में देखा, क्योंकि वो एक स्पेशल केस है, गिव रीजन में भी पूछ सकता है या एमसीक्यू में भी आ सकता है। और फिर आता है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंडेंट है। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होते हैं मास पे, और स्पेसिफिक होता है कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास का पर यूनिट हो। क्यों? क्योंकि भाई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर डिपेंडेंट ऑन मास। एनी इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास पाप है भाई। यहां पे हमेशा याद रखना इंटेंसिव, ये जो शब्द है ये नहीं आएगा। ये आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो? पाप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी सिस्टम जहां पे फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ मैटर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर स्टडी पर्पस। सेम डेफिनेशन हमने वहां सिस्टम में डेफिनेशन डाली, सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम वन एंड द सेम, आप सेम डेफिनेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके के सिस्टम होते हैं हमारे पास, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। इसे समझना बड़ा जरूरी है। तो देखिए ओपन सिस्टम में क्या होता है? मास एंड एनर्जी
बोथ आर ट्रांसफरेबल। भाई दोनों ही ट्रांसफरेबल है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक ही क्वांटिटी ट्रांसफरेबल है, दोनों ट्रांसफरेबल है। उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ट्यूब ले रखा है, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर भी हो रही है, मास ट्रांसफर भी हो रहा है। भाई एनर्जी भी अंदर से बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर जा रहा है, मास भी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा रहा है। या दूसरा एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि भाई एक बीकर ले लो। अरे भाई साहब बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हुए यहाँ पे मैं ठीक है, मेरी ड्राइंग को माइंड मत करना प्लीज, थोड़ी खराब है, थोड़ी नहीं बहुत खराब है, आई ट्राई। तो यार देखो, एक हमारे पास एक बीकर है, यहाँ बीकर में मैंने लगा दी है आग नीचे, और यहाँ पे मैंने डाल रखा है पानी। बीकर हमारा खुला हुआ है, तो यहां से क्या होगा, पानी का क्या बनेगा, यहाँ पे वेपर बनेगा। क्या बनेगा, वेपर बनेगा। तो आप देखो मास भी ट्रांसफर हो रहा है, मास भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। हाँ या ना, मास ट्रांसफर हो रहा है, पानी का वेपर बन रहा है, तो मास तो ट्रांसफर हो ही रहा है, एनर्जी भी आप हीट एनर्जी दे रहे हो, तो उससे इवेपोरेशन होकर वेपर बन रहा है। तो ये एक एग्जांपल हो गया ओपन सिस्टम का। ठीक है, इसी के बाद अगर हम देखते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ओनली एनर्जी ट्रांसफर। ओनली एनर्जी ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर। तो क्लोज सिस्टम में हमारा सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर ही होता है भाई, मास ट्रांसफर वहां पे नहीं होता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा जो JEE में भी एज एन MCQ आ रखा है, काफी टाइम पहले आया था मगर आ रखा है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर मैंने डाल दिया है एक भाई पिस्टन। ठीक है, एक मैंने डाल दिया है जी पिस्टन। तो अब यहां पे एक चीज ध्यान दो, जैसे जैसे मैं यहां पे फोर्स लगाऊंगा, फोर्स ऑन पिस्टन, तो वैसे वैसे क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव करेगा x डिस्टेंस। तो जैसे जैसे ये नीचे मूव करेगा क्या होगा कि भाई एनर्जी ट्रांसफर ही होगी। ये एक क्लोज्ड सिस्टम का एग्जांपल है। आपको क्या लगेगा कि भाई नीचे जा रहा है तो वो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम तो कम हो रहा है, तो मास भी तो होगा ना चेंज, मगर ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे मीडियम है एयर, एयर कंप्रेस होगी। क्या होगा, एयर कंप्रेस होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कंप्रेस होगा, मास चेंज विल नॉट हैपन, एयर विल ओनली बी कंप्रेस्ड, हवा सिर्फ कंप्रेस होगा। ठीक है, बट हाँ एनर्जी का ट्रांसफर जरूर होगा। So this is one of the most important example for closed system. ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल हमको देखना है, तो ये देखिए यहां से हमने ऊपर लिड बंद कर दिया, लिड इज क्लोज्ड, लिड क्लोज्ड, और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्लोज सिस्टम। आई होप सो आपको क्लोज सिस्टम समझ में आया, बिकॉज दिस एग्जाम्पल विच जो मैंने आपको बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारा थर्ड सिस्टम को देखते हैं, विच इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। देखो आइसोलेटेड सिस्टम बड़ा बढ़िया सिस्टम है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, वो भी हम देखते हैं, जो हम थर्मोडायनेमिक्स में काफी यूज करेंगे। ठीक है, ऑल इन ऑल इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम या आइडियाबैटिक सिस्टम,
दोनों बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, नो एनर्जी नो मास ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर टेक प्लेस, ना एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस होता है ना मास ट्रांसफर। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास ये बीकर है, बीकर मैंने फिर से बड़ा घटिया सा बना दिया है कोई बात नहीं, चलिए यहां पे मेरे पास एक, ठीक है, एक बीकर है इस बीकर को मैंने, ओके 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 ओके, समझ गया मैं कैसे बनाना है, मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग चुका है। अब बढ़िया बनेगा बीकर मेरा। ये है मेरे पास एक बीकर, शानदार सा बीकर, प्यारा सा बीकर। इस बीकर के लिड को मैंने कर दिया है शट। क्या कर दिया? शट। मतलब एक बीकर है, उसको ऊपर से लीड बंद कर दी, तो ना एनर्जी ट्रांसफर होगा ना मास ट्रांसफर होगा। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया भाई जी? आइसोलेटेड सिस्टम का। देखिए इधर, बहुत सिंपल, यहां पे आपको दिख रहा है ना मास ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये एग्जाम्पल हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का। क्लोज सिस्टम में जो पिस्टन एग्जाम्पल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम अगेन रिपीटिंग दैट। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं उसके अंदर, बट आई थिंक सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट इन मेकिंग यू क्लियर दैट एज वेल। सो दीज वर अवर ऑल 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। चलिए, इसी के साथ आज के जो हमारे टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए। मैंने जो ये यूनिट 1 है इसको 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। आज हमारा पार्ट 1 था। नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 2 करेंगे, जहां पे हम लोग फर्स्ट लॉ, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ज्यादा ध्यान देंगे, और फिर हम लोग मेयर्स रिलेशन और ये सब के बारे में भी आगे चल के पढ़ेंगे। एंड देन विल गो फॉर द क्लोज सिस्टम एनालिसिस, देन विल कम ओपन सिस्टम एनालिसिस, और आगे चलते चलते सेकेंड लॉ एंड एंट्रोपी विल कंप्लीट। ठीक है, तो सेशन एंड करने से पहले, लेक्चर खत्म करने से पहले एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, अगर आपको आता है यू कैन पॉज दिस, और या तो आप सॉल्व करके वीडियो को आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी का तो कोई नामो हिसाब नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। मैकेनिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जी ये भी नहीं होगा। स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, नहीं, ये भी नहीं होगा। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सो आगरा इज योर करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, जी हाँ, ये बिल्कुल एक ब्रांच है। क्लासिकल भी है, केमिकल भी है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? तो रेफ्रिजरेटर, जी हाँ, हम सीओपी नामक चीज के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। गैस कंप्रेसर्स, बिल्कुल, जब हम लोग एक्सियल फ्लो टर्बाइन, गैस टर्बाइन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रपल्शन में यूज होता है, वहां पे हम देखेंगे इसके बारे में। एंड देन पावर प्लांट्स, बिल्कुल, स्टीम पावर प्लांट, जहां पे भी स्टीम लग जाता है, उसका बेस ही होता है भाई थर्मोडायनेमिक्स। एंड विल स्टडी दिस आगे चल के, जब स्टीम इंजीनियरिंग आएगा, मोस्टली 3rd ईयर में होता है ये सब्जेक्ट, वहां पे हमें पता चलेगा कि भाई पावर प्लांट में जो स्टीम इंजन, उसमें भी जो सबसे बेसिक चीज होती है वो होती है टीएस डायग्राम। क्या होता है? टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। इसके बारे में हम आगे डिस्कस जरूर करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम? ओपन सिस्टम, बिल्कुल। क्लोज सिस्टम, बिल्कुल। थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम, बिल्कुल। सो डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, इसी के साथ साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आरू अंडरवे। आई होप सो आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, एंड आई बिलीव कि जो भी आज मैंने आपको कराया, आप इसके नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, इसको प्लीज रिवाइज करते रहिएगा। आगे चल के हम जो भी करेंगे उसको प्लीज रिवाइज करते रहिएगा। अबाउट 1 महीना, 1 मंथ का हमारा टारगेट रहेगा टू कंप्लीट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है,
New videos will be out on every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday. ठीक है, अब जो भी हमारा यूनिट खत्म होगा ना, उस यूनिट के एंड में आपको प्रैक्टिस शीट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद ऑल दोस्त जो आपके बैचमेट्स हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है सब्जेक्ट में, बिकॉज बहुतों को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है. सो आई बिलीव कि इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू देम. चलिए, स्टे सेफ, थैंक यू एंड see you next time.